السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور میرے سیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں، آج کے سبق میں ہم لوگ تختی نمبر 10 پڑھیں گے۔ تختی نمبر 10 یہ اخفاء کے بیان میں ہے۔ اخفاء کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانا، اور تجوید کی اصطلاح میں اخفاء کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانے کو۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہم لوگ آج پڑھ رہے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفاء آئیں، حروف اخفاء لکھ دیا گیا ہے، یہ 15 ہیں۔ حروف اخفاء آئیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ جیسے ناک میں آواز کس طریقے سے چھپاتے ہیں، جیسے پنکھا، تو پنکھا نہیں کہتے ہیں، پنکھا۔ لندن، کندن، مندر، بندر، اس طریقے سے آواز جو ہے جاتی ہے۔ ٹنکی، تو ناک میں آواز کو چھپانا ہے، غنّے کی طرح نہیں کہ ناک میں آواز بالکل گھس جائے، بلکہ بس ناک میں آواز چھپ جائے، اور چھپنے کی جو مقدار ہوگی وہ 1 الف کے برابر ہوگی، یعنی 1 الف کے برابر اس کو کھینچنا نہیں ہے، بلکہ ناک میں آواز کو چھپانا 1 الف کے برابر ہے۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفاء آ جائیں، حروف اخفاء یہ ہیں تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، تو یہ 15 حروف ہیں۔ اب اگر یہ حروف تنوین یا نون ساکن کے بعد آتے ہیں تو وہاں ہمیں اخفاء کرنا ہے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ جس میں اکثر ہمارے بھائی اور بہن غلطی کرتے ہیں، اور یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن ہم لوگ کوشش کریں گے، پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ انسان کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے مثال یہاں بورڈ پر لکھ دی گئی ہے، تجارتن، تجارتن، تا پر کیا ہے؟ تنوین ہے۔ تنوین کے بعد کیا ہے؟ کون سا حرف ہے؟ تا ہے، اور تا یہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں پہ نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے چھپائیں گے؟ تجارتوں تخشون، تجارتوں تخشون، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اب ایک یہ ہے تجارتن تخشون، تو یہ اظہار ہو جائے گا، جبکہ اظہار کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حروف حلقی اگر آئیں گے تو وہاں پر اظہار ہوگا، اور یہاں حروف اخفاء ہے تنوین کے بعد، تو یہاں پر ناک میں آواز کو چھپائیں گے۔ تجارتوں تخشون، آگے نون ساکن ہے اور اس کے بعد قاف ہے، یہ بھی حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں بھی ناک میں آواز کو چھپائیں گے۔ جیسے یا نون پیش یوں، قاف زبر قا، یوں قا، صاد پیش سو، یوں قصو، تو پڑھیں گے یوں قصو، یوں قصو، اس طریقے سے۔ نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ فا ہے، یہ بھی حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں پر بھی ناک میں آواز کو چھپائیں گے۔ ینفعکم، ینفعکم، آواز اوپر کی طرف جائے گی، ینفعکم نہیں کہیں گے، ین کریں گے تو غنہ ہو جائے گا۔ غنہ میں ناک میں آواز ایک دم گھستی ہے، اندر حرکت کرتی ہے، لیکن اخفاء کے اندر ناک میں آواز صرف چھپتی ہے۔ ینفعکم یہ اخفاء ہے، ینفعکم یہ کیا ہے؟ اظہار، یہ غنہ ہے، یہاں پر ہمیں اخفاء کرنا ہے۔ ینفعکم یومئذ، دال پر کیا ہے؟ دال پر 2 زیر ہے، تنوین ہے، لیکن ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ کس پر جو ہے زیر آ رہا ہے یا کس پر تنوین آ رہی ہے، ہمیں اگلے والے حرف سے مطلب ہے کہ وہ حروف اخفاء میں سے ہے کہ نہیں۔ تو تنوین کے بعد دال ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا، اس لیے کہ حروف اخفاء میں سے دال ہے۔ یومئذ دبرہ، یومئذ دبرہ، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ ثمنن، تنوین ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ قاف ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا، اس لیے کہ قاف حروف اخفاء میں سے ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا، اس طریقے سے۔ اب اگر پڑھیں
समना समनन कलीलन, तो ये सही नहीं है। हिजाजन तनवीन है और उसके बाद क्या है, सीन है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इख्फा होगा। हिजाजन सुबुलल, हिजाजन सुबुलल, ये है। अब अगर कहें हिजाजन सुबुलन, हिजाजन सुबुलन, तो ये क्या है, सही नहीं है। जिहादिन तनवीन है और उसके बाद क्या है, फा है, और फा एक किसमें से है, हुरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नाक में आवाज़ को छुपाएंगे। जिहादिन फी सबीलिही, जिहादिन फी सबीलिही, इस तरीके से पढ़ेंगे। कौमन सालिहीन तनवीन है और उसके बाद क्या है, सा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इख्फा होगा, इसलिए कि साद हुरूफ इख्फा में से है। कौमन सालिहीन, कौमन सालिहीन। अब अगर कहें कौमन, मन मन मन, ये इख्फा नहीं होगा, ये गुन्ना हो जाएगा। या कौमन सालिहीन, ये भी क्या है, इज़हार हो जाएगा। सही क्या है, कौमन सालिहीन। इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस पर हम काबू पा लेंगे। लेकिन शर्त ये है कि जो कायदा हम पढ़ते हैं, हम उसको नूरानी कायदा से तो पढ़े ही, लेकिन रोज़ाना कुरान पाक जब पढ़ें तो अपने आप को अपडेट करते हुए चलें, यानी उसको फिट करें, देखें कि तनवीन है, उसके बाद कौन सा हर्फ आ रहा है। अगर हुरूफ इख्फा है या हुरूफ हलक़ी हैं, तो जो कायदा हम पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसी एतबार से हमारे अंदर तब्दीली भी आनी चाहिए। अब किताब में देख लें कायदा पहले, और कुछ मिसालें भी वहाँ मौजूद हैं। अब किताब में देखते हैं तख्ती नंबर 10 इख्फा। ये तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 2 है। अब यहाँ भी इसी चीज़ को देखना है कि तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ है तो वहाँ नाक में आवाज़ को छुपाएंगे। जैसे कि बोर्ड पे बताया गया कि बंदर, मंदिर, लंदन, टंकी, मंकी, तो इस तरह से आवाज़ नाक में जाएगी। और इख्फा की जो मकदार है वो 1 अलिफ है, और आवाज़ जो है बिल्कुल नीचे नहीं दबेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ताकि जो है नाक में आवाज़ छुपे। और अगर नीचे की तरफ नाक में आवाज़ जाएगी तो वो गुन्ना हो जाएगा। नाक में जैसे आवाज़ गुनगुनाने लगती हो तो वो गुन्ना हो जाता है, लेकिन यहाँ इख्फा है, नाक में आवाज़ को छुपाना है। पहले कायदा देख लेते हैं। तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 2, हुरूफ इख्फा 15 है। ता सा, जीम दाल, जाल जा, सीन शीन, सौद ज़ौद, ता ज़ा, फा काफ काफ। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा आएँ तो नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। इख्फा की मकदार 1 अलिफ है। फिर सुनिए, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में तो नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। इख्फा की मकदार 1 अलिफ है। अब जैसे यहाँ पर हम नून साकिन है, अन, और उसके बाद क्या है, ता है, तो ये हुरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पर अब नाक में आवाज़ ले जाएंगे। आता, आता, ये है इख्फा। और अगर कहें अंता, अन, यानी नाक में आवाज़ नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ये गुन्ना हो जाएगा, और ये कहने में बड़ी दुश्वारी होती है, नाक फट भी सकती है अगर गुन्ना यहाँ पर करेंगे। तो क्या बोलेंगे, आता, इस तरीके से बोलेंगे। मोज़िरु, नून साकिन है, उसके बाद क्या है, जाल है, तो यहाँ पर भी इख्फा होगा। कैसे पढ़ेंगे, आता मोज़िरु किरामा कातिबीना, तनवीन है और उसके बाद क्या है, काफ है, तो यहाँ पर इख्फा होगा। किरामा कातिबीना। अब कहें किरामन, मन मन नहीं करेंगे, किरामा कातिबीना। हिज्जे लगाना तो आप सबको आता है, काफ ज़ेर की, रा अलिफ ज़बर रा, किरा, मीम 2 ज़बर मन। अब ये हम लोग जान लिए हैं कि ज़बर के बाद अगर अलिफ आता है तो हिज्जे लगाने में उसको नहीं पढ़ा जाता है। किरामा कातिबीना। को तो काफ नून पेश को, ता पेश तो
तो नून साकिन उसके बाद क्या है ता है, तो यहाँ पर इख्फा होगा कुंतु तुराबन, ता पेश तू, रा खड़ा ज़बर रा, बा दो ज़बर बन, तुराबन कुंतु तुराबन, इस तरीके से पढ़ेंगे। यतीमा फ़आवा, या ज़बर या, ताया ज़ेर ती, यती, मीम दो ज़बर मा, यतीमा। तनवीन के बाद क्या है फ़ा है, और ये हुरूफ़ इख्फ़ा में से है। यतीमा फ़ा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, फ़आ, वाव खड़ा ज़बर वा, फ़आवा। ये जो या लिखी हुई है, ये या अरबी के अंदर यानी कुरान अज़ीम के अंदर ये लिखा रहता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। ये कुरान का रस्मुल ख़त है, यानी इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे आप देखेंगे वज़्ज़ुहा लिखा होता है, हा खड़ा ज़बर हा, लेकिन वो या के साथ लिखा है, तो उसको वज़्ज़ुहाए नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वज़्ज़ुहा। तो इसको फ़आवाए नहीं पढ़ेंगे, बल्कि फ़आवा पढ़ेंगे। मा दखलहू, मीम नून ज़बर मा, उसके बाद क्या है दाल है, ये हुरूफ़ इख्फ़ा में से है। मा दखलहू, हा उल्टा पेश है, वाव मुद्दा के बराबर, इसको खींचेंगे। रसूलिन करीमिन, तनवीन है और उसके बाद क्या है काफ है, तो यहाँ पर इख्फ़ा होगा रसूलिन करीमिन। अब अगर कहें रसूलिन करीमिन तो ये इजहार हो जाएगा, हमें इजहार नहीं करना है, इख्फ़ा करना है। नारा, तनवीन और उसके बाद क्या है राल, तो यहाँ पर भी इख्फ़ा होगा। नारा ज़ाता, नारा ज़ाता, किताबुन, तनवीन है और उसके बाद क्या है फ़ा है, ये हुरूफ़ इख्फ़ा में है। किताबुन फ़ीही, किताबुन फ़ीही, फ़ीही नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि हा पर हरकत है, जल्दी पढ़ेंगे। यौम, वाव से पहले क्या है या है, तो ज़बर है, तो ये हुरूफ़ लीन है, यानी वाव लीन है, तो इसको मारूफ पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। यौम युंफ़क़ु, नून साकिन उसके बाद फ़ा है, या नून ज़बर या नून पेश, यूं फ़ा ज़बर फ़ा, यौम युंफ़ा, फ़ा पेश फ़ु, यौम युंफ़क़ु, इस तरीके से पढ़ेंगे। मा तग़ा, नून साकिन उसके बाद क्या है फ़ा है, तो इख्फ़ा में से है, इसलिए इख्फ़ा करेंगे। और गा के बाद गईन के बाद या बनी हुई है, तो ये सिर्फ बनी ही हुई है, जैसे फ़आवा के अंदर है, लेकिन गईन पर खड़ा ज़बर की हरकत है, तो गईन खड़ा ज़बर गा ही पढ़ेंगे। मा तग़ा फ़त्हुन क़रीबुन, तनवीन है और उसके बाद क़ाफ़ है, तो इसको इख्फ़ा करेंगे। फ़त्हुन क़रीबुन, मा सक़ुलत, नून साकिन है उसके बाद ता है, तो ये हुरूफ़ इख्फ़ा में है। मा सक़ुलत अंज़लना, नून साकिन और उसके बाद क्या है ज़ा है, इख्फ़ा होगा। अंज़लना शैइन क़दीरुन, शैइन क़दीरुन, नून साकिन है तो तनवीन है और उसके बाद क़ाफ़ है, तनवीन के बाद क़ाफ़ आएगा तो इख्फ़ा होगा। शैइन क़दीरुन, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। एक बार तो फिर पढ़ते हैं। अंत मुंज़िरु किरामन कातिबीन कुन्तु तुराबन यतीमन फ़आवा मा दखलहु रसूलिन करीमिन नारन ज़ाता किताबुन फ़ीही यौम युंफ़क़ु मा तग़ा फ़त्हुन क़रीबुन मा सक़ुलत अंज़लना शैइन क़दीरुन। तो तनवीन और नून साकिन का ये दूसरा कायदा है। पहले में 6 पढ़े थे, इसमें 15 पढ़े, ये 21 हो गए। बाकी आगे चल करके तख्ती नंबर 23 और 24 में तनवीन और नून साकिन का कायदा पढ़ेंगे। ये तख्ती थोड़ी बड़ी है, इसके अंदर 15 हुरूफ हैं, तो इसको हम देखें। जब तक इख्फ़ा हम नहीं करेंगे जहाँ पर इख्फ़ा है, और इजहार जहाँ पर है वहाँ पर इजहार नहीं करेंगे,
تو جو قرآن پاک پڑھنے کی جو خوبصورتی ہے وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بریانی بنی ہے لیکن اس کے اندر مسالہ ڈھنگ سے نہ پڑا ہو، رائتہ نہ ہو، اچار نہ ہو، چٹنی نہ ہو، تو ٹیسٹی نہیں آ پاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم حرکات اور حروف مدہ اور حروف لین پر کنٹرول رکھتے ہیں لیکن اخفا اور اظہار نہیں کرتے تو جیسے بریانی بغیر رائتے کی پھیکی لگتی ہے، ایسے ہی قرآن پاک کو جب ہم پڑھیں گے تو وہ خوبصورتی نہیں آ سکتی جو قرآن چاہتا ہے۔ اس لیے ہم اس کو اہمیت دیں اور صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کریں۔